আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক শ্রোতা, প্রিয় বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিডিও ক্লিপ শেয়ার করতে চলেছি। এই ভিডিওতে একটি ছোট ছেলে হিন্দু পণ্ডিত ব্যক্তি অনিরুদ্ধ আচার্যকে বলছে, তিনি তার বক্তব্যে প্রায় বলে থাকেন যে ঈশ্বর বা ভগবান সব জায়গায় আছে আর মানুষের অন্তরেও ভগবানের বসবাস রয়েছে। তবে মানুষের অন্তরে যদি ভগবান থেকে থাকে তাহলে মানুষ এত মন্দ কাজ করে কেন, বা তার মনে এত নেতিবাচকতা কোথা থেকে আসে। অর্থাৎ সে ছোট ছেলেটির কথার অর্থ হচ্ছে যে অন্তরে ভগবানের বসবাস থাকে সেখানে কোনো নেতিবাচকতা কিভাবে জন্ম নিতে পারে। আর এ প্রশ্নের উত্তরে হিন্দু সন্ন্যাসী ব্যক্তি অনিরুদ্ধ আচার্য বলেন, ভগবান সবার মনে বসবাস করে না। যারা সত্য বা যাদের মনে কোনো প্রকার নেতিবাচকতা থাকে না, ভগবান কেবল তাদের মনেই অবস্থান করে। বন্ধুরা, আমি আপনাদের সাথে সে ছোট ছেলেটির হিন্দু সন্ন্যাসী ব্যক্তিকে করা প্রশ্নের ভিডিও ক্লিপটি অবশ্যই শেয়ার করব। এছাড়া আমি আপনাদের সাথে ডক্টর জাকির নায়েকের একই ধরনের একটি ভিডিও ক্লিপ শেয়ার করব ইনশাআল্লাহ। তাই এই ভিডিওটি আপনাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটি দেখার অনুরোধ রইল। বন্ধুরা, প্রথমে আমি আপনাদের সাথে সে ছোট ছেলেটির হিন্দু সন্ন্যাসী ব্যক্তি অনিরুদ্ধ আচার্যকে করা প্রশ্নের ভিডিও ক্লিপটি দেখাতে চাই। আপনারা তার ভিডিও ক্লিপটি দেখুন। जी मेरा आपसे ये सवाल है कि आप कहते हैं कि भगवान हर जगह बसते हैं, तो भगवान हमारे अंदर भी बसते हैं, तो हमारे अंदर इतनी बुराइयां क्यों हैं? अगर भगवान हमारे अंदर बसते हैं तो भगवान हमारे अंदर बसते हैं, इसलिए तो कहते हैं कि बुराइयां हटाओ। जब भगवान को बिठाना है अपने हृदय में तो बुराइयों को हटाना पड़ेगा। यदि बुराइयां, अब देखो एक बात कही गई है कि सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है प्रभु ताके हृदय आप। जिसके हृदय में सच्चाई और अच्छाई होती है उसी के हृदय में भगवान होते हैं। बाकी सबके हृदय में भगवान नहीं होते। सबका हृदय तो कचरे से भरा पड़ा है। जिसका हृदय कचरे से भरा होगा उसके पास भगवान नहीं होंगे। अर्थात भगवान उन्हीं के पास होते हैं जिनके हृदय में सच्चाई होती है। बाकी आत्मा तो ईश्वर का रूप है, जिस आत्म तत्व से शरीर इंद्रियां चलती हैं। बाकी भगवान उन्हीं के दिल में बैठते हैं, हृदय में, जिनके हृदय में सच्चा प्रेम और सच्चाई होती है। बुराइयां हैं उनके पास भगवान नहीं रहते। जैसे दुर्योधन के पास बुराई थी तो भगवान ने दुर्योधन का साथ ना देकर अच्छाई अर्जुन में थी तो अच्छाई का साथ दिया। तो भगवान सदा अच्छाई के साथ रहते। বন্ধুরা, আপনারা হিন্দু সন্ন্যাসী ব্যক্তি অনিরুদ্ধ আচার্যের ভিডিও ক্লিপটি দেখলেন এবং তার বলা কথাগুলো শুনলেন ও বুঝলেন। এবার আমি আপনাদের সাথে ডক্টর জাকির নায়েকের একটি ভিডিও শেয়ার করব, যেটাতে একজন শিখ ব্যক্তি তাকে বলে যে হিন্দুদের ধারণা সব কিছুতে ভগবান রয়েছে, মানুষের অন্তরেও ভগবানের বসবাস আছে। তাছাড়া প্রকৃতিতে বিদ্যমান থাকা গাছপালা, পাহাড় পর্বত, এমনকি পাথরেও ভগবানের অস্তিত্ব রয়েছে। আবার অনেকে বিজ্ঞানীরা বা বিজ্ঞানে বিশ্বাসী ব্যক্তিরা এনার্জি বা শক্তিকেই ভগবান বলে মনে করে। তাদের এই ধারণাটি সঠিক কিনা, আর এটা যদি সঠিক হয়ে থাকে তাহলে সে বিশ্বাস করে যেহেতু সবার অন্তরে ভগবান বসবাস করে, তাই আমাদের সবাইকে একে অপরের প্রতি মনে সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ রাখা উচিত। এতে পৃথিবীতে সম্প্রীতি ও একতা বজায় থাকবে এবং শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে আসবে। আর তার এই বিশ্বাসটুকুই বা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত বলে সে ডক্টর জাকির নায়েকের কাছে প্রশ্ন করে। সে শিখ ব্যক্তির করা প্রশ্নের উত্তরে ডক্টর জাকির নায়েক খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলেছেন। আমি আপনাদের সাথে ডক্টর জাকির নায়েকের সে ভিডিও ক্লিপটি শেয়ার করতে চাই। আপনারা তার ভিডিও ক্লিপটি দেখুন এবং তার বলা কথাগুলো শুনুন। भाई साहब अवतार सिंह, आपने बहुत अहम सवाल किया और एक बेहतरीन सवाल किया, और इस सवाल के ज़रिए कुछ लोगों के दिमाग में जो गलत फहमी वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी, और आपके साथ जो गलत फहमी वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हिंदू धर्म हिंदू ये समझते हैं कि जब पत्थर को पूछते हैं तो एनर्जी, आपने साइंस के बारे में कहा एनर्जी आपके इसमें एनर्जी, मेरे इसमें, मैं एनर्जी के बारे में बिल्कुल मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है, एनर्जी है। लेकिन ये कहना कि ये एनर्जी अल्लाह है, ये एनर्जी खुदा है, ना कुरान में लिखा है ना वेद में लिखा है। पॉइंट नंबर 1, ये आपकी गलत फहमी है कि ये एनर्जी खुदा है। कुरान में लिखा है कि उसके जैसा कोई नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक इट, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। यही चीज बाइबल में लिखा है, देयर इज नथिंग लाइक अनटू इट इन द हेवन अबव, इन द अर्थ बीनीथ, इन द वाटर बीनीथ द अर्थ। भगवान के जैसा मुमकिन ही नहीं, कोई भी चीज आसमान में हो
धरती पे हो जमीन पे हो, ना कंकर ना पत्थर ना मूर्ति। वो ही लिखा है वेद में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान का कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो ये लिखा है धार्मिक किताबों में, लेकिन धर्म के मानने वाले अपनी आसानी के लिए तब्दील कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप सपोज बिजनेसमैन हैं, आप एक कंपनी के मालिक हैं, आप एक अपना पुराना उसूल, किस तरीके से कंपनी चलना चाहिए, उसूल से चलते आ रही है। आपके कोई नई मैनेजर आते उसूल को बदल देते हैं, आपके उसूल के खिलाफ काम करते, बोलते क्या ये और बेहतर होगा, इससे मुनाफा ज्यादा होगा। आपके उसूल है कुछ, आपके उसूल होंगे क्या मैं ईमानदारी से काम करूं, आपके मैनेजर के उसूल होंगे ईमानदारी को छोड़ो पैसे ज्यादा कमाने का। आपको जब पता चलेगा आपका मैनेजर आपके उसूल को तोड़ रहा है, बोलेगा मालिक ज्यादा पैसे मिलेंगे, रिश्वत दो। आप उससे सहमत है? आप बोलेंगे ज्यादा पैसे छोड़ो, मिलते क्या नहीं मिलते, रिश्वत देना हराम है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने बुनियादी बातें कह चुकी है, किस तरीके से उस ईश्वर की इबादत करना। अभी इंसान अपनी गलतफहमियों में अल्लाह ताला खुदा ईश्वर की बात छोड़ के खुद के तरीके से इबादत करने लगते हैं, और हम क्या कर रहे हैं, उस अजीम खुदा को गाली देते हैं। हम कहते हैं कि खुदा ने बेटा जना, अस्तगफुरुल्लाह, हम खुदा को उस मूर्ति में ले आते हैं। जब लिखा हुआ है श्वेताश्वतर उपनिषद में, यजुर्वेद में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की प्रतिमा नहीं है, हम मूर्ति बनाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी को मदद करता हूं और अगर वो शख्स मुझे जानता नहीं जाकिर कैसा दिखता है, मिसाल के तौर पे श्रीलंका में मैं एक स्टूडेंट को मदद करता हूं, रोज 10,000 रुपये भेजता हूं, उसको पता नहीं जाकिर कैसा, क्या करता है, वो कॉकरोच बनाता है, कॉकरोच, और रोज सुबह को बोलता है जाकिर शुक्रिया। जब मुझे पता चलेगा उसने मुझे कॉकरोच बनाया, क्या मुझे खुशी होगी? भले वो मुझे कुछ खाली दिल में कहता जाकिर शुक्रिया काफी है, शुक्रिया नहीं भी कहता था चल जाता था, लेकिन मुझे कॉकरोच बनाया, इंसान से कॉकरोच बनाया, मुझे फर्क पड़े ना पड़े, वो तो बेवकूफ बन रहा है ना। कैसा बेवकूफ इंसान है, मुझे भले फर्क ना पड़ा, मैं दयालु, जान देना मुझे कॉकरोच में क्या फर्क पड़ा, मैं बोलूंगा क्या बेवकूफ इंसान है, क्या बेवकूफ इंसान है कि कॉकरोच के सामने झुक रहा है। तो इसी तरीके से खुदा ने हर मजहबी किताब में दिखाया हुआ है किस तरीके से उसकी इबादत करें, किस तरीके से उसकी बात माने। हम आते हैं और अपने तरीके से सोचने लगते हैं एनर्जी इज गॉड। कहां नहीं लिखा एनर्जी इज गॉड? आपने बिल्कुल आपके सवाल का जवाब खुद आपने दिया। आपने एक मिसाल दी कि हिंदू लोग कहते हैं नमस्ते, नमस्ते का लफ्ज किधर से आता है आपको शायद पता होगा। नमस्ते आता है इदम नममे से। इदम नममे मतलब मैं आपके सामने झुकता हूं, मैं आपकी इबादत करता हूं, बराबर। इदम नममे आप कहना चाहते मैं आपके अंदर ईश्वर की इबादत करता हूं। मिसाल के तौर पे वो आदमी चोर है, वो गलत काम कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, आप उसको ईश्वर बोलेंगे? आप ईश्वर को इतना घटिया समझ गए? वो बलात्कार करने वाले इंसान को बोलते आप ईश्वर है। इससे भाईचारगी बढ़ेगी नहीं घटेगी। वो बलात्कार करने वाले को, वो चोर को, वो डाकू को मैं ईश्वर मान रहा हूं, उसके सामने झुक रहा हूं। अल्लाह को क्यों गाली दे रहे, ईश्वर को क्यों गाली दे रहे, खुदा को क्यों गाली दे रहे? इस्लाम में, इस्लाम की भी आपने मिसाल दी, इस्लाम में हम कहते अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह ताला से फरमाते इस इंसान पे सलामती दे, चाहे वो अच्छा इंसान है तो भी सलामती देने की बात अच्छी है, चाहे वो चोर या डाकू हो, मैं बोलूंगा अस्सलामु अलैकुम। मैं कह रहा हूं या अल्लाह, या रब, या खुदा, या ईश्वर, या भगवान, इस डाकू पे रहमत फरमा। कुछ बुरी बात है ना? मैं अल्लाह को गाली दे रहा हूं, उसके लिए दुआ दे रहा हूं कि तू गलत काम छोड़ और सही रास्ते पे आ। अगर मैं उसको खुदा मानूंगा तो खुश हो जाएगा, और चोरी करेगा, और बलात्कार करेगा। कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता। ये धर्म के मानने वाले अपनी खुद की इजाज़त करते हैं, इसे कहते हैं इनोवेशन, बिदात। जिस तरीके से खुदा ने सिखाया है कि उसकी इबादत करें, उसी तरीके से हमें करना चाहिए। तब्दीली लाएंगे, हम समझ रहे हैं कि भाईचारा बढ़ेगा, भाईचारा नहीं बढ़ेगा, भाईचारा घटेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूंगा अवतार सिंह अस्सलामु अलैकुम, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आप पे सलामती हो, आप पे अमन हो, आप मुझे बोलो इससे भाईचारा ज्यादा बढ़ेगा या कहने से भाई मैं आपको ईश्वर मानता हूं और फिर आपकी बात नहीं मानूं मैं? फिर अगर आप मुझे बोलेंगे चलो भाई शराब पीने चलो, चलो भाई लड़की के साथ रात गुजारेंगे, तो मैं क्या बोलूंगा? मेरे भगवान मुझे बुला रहा है। तो ये कहना अस्सलामु अलैकुम मतलब मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि ये इंसान
के ऊपर सलामती हो। अच्छा इंसान पे भी सलामती कहना अच्छी बात है, बुरा इंसान पे भी सलामती कहना अच्छी बात है। तो इस तरीके से इस्लाम में जो ग्रीटिंग है उससे किसी को नुकसान नहीं होता है, ना इट इज हिपोक्रेसी, इट इज द बेस्ट वे ऑफ भाईचारा। और कुरान में कहा गया है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86 में 86, वह इज़ा हुई तुम, मतलब अगर कोई आपको सलाम देता है तो आप उससे अच्छा सलाम दो, कम से कम उस जैसा, क्योंकि अल्लाह ताला हिसाब रखता है। मतलब अगर आप अस्सलाम वालेकुम कहेंगे, मुझे कहना चाहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगर आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, मैं कहूँगा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू, और बेहतरीन होना चाहिए, या कम से कम यकसा। आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, अल्फाज वही है लेकिन दिल से आ रहा है वालेकुम अस्सलाम, इसमें भी जज्बा ज्यादा है, ये भी बेहतरीन है। तो कुरान में लिखा है कोई भी आपको सलाम करता है उससे बेहतरीन सलाम दो, या उससे बेहतर ना कर सको, कोई कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कम से कम उतना दो, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये तालीमात है कुरान में, इससे भाईचारा बढ़ता है। तो गलत तरीके से इबादत करना जो वेद के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, बाइबल के खिलाफ है, ग्रंथ के खिलाफ है, वो करने से भाईचारा नहीं बढ़ेगा बल्कि घटेगा। तो इसीलिए हम ये जाने ईश्वर जो हमारा बनाने वाला है, हमारा खालिक है, वो जानता है कि किस तरीके से उसकी इबादत करना चाहिए, वो बेहतरीन जानता है। मिसाल के तौर पे आपको डॉक्टर कोई दवाई देता है कि ये लाल गोली सुबह को लेना, हरी गोली दोपहर को लेना, आप बोलेंगे छोड़ो हरी लाल, मैं नीली गोली खाऊंगा। अरे वो डॉक्टर है, वो जानता है। तो इसी तरीके से हमारा खालिक, हमारा मालिक खुदा है, उसकी बात के ऊपर अमल करना। इसीलिए जो इंसान खुदा की बातों पे अमल करता है उसे कहते हैं इस्लाम, मतलब सबमिट, ही इज कॉल्ड एज अ मुस्लिम। तो जो कोई अल्लाह के मुताबिक चलता है उसे कहते हैं पर्सन हु सबमिट्स हिज विल टू गॉड। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। বন্ধুরা, আপনারা ডক্টর জাকির নায়েকের ভিডিও ক্লিপটি দেখলেন, শুনলেন এবং বুঝলেন। এই ভিডিওটি সম্পর্কে আপনাদের মতামত কি তা কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন। এই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার সমস্ত জায়গায় শেয়ার করে সকলকে ও সকল মুসলিম উম্মাহকে দেখার সুযোগ করে দিন।